मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल. इन दिस सेशन विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क दैट आई प्रिपेयर्ड इन जिपमेट एग्जामिनेशन इन प्रीवियस ईयर्स. स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब योर चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. सो फर्स्ट क्वेश्चन, if A can do 1/4 of a work in 3 days and B can do 1/6 of the same work in 4 days, how much will A get if both work together and are paid rupees 180 in total? So A can do 1/4 of a work in 3 days. So if we can do 1/4 work in 3 days, so effectively A will be completing the work in 4 into 3 days. Because 1/4 work करा 3 days में, तो complete work करेगा 4 times number of days में, यानी 4 into 3, 12 days में. Similarly for B is completing 1/6 of the work in 4 days, तो complete work करेगा 4 into 6, 24 days में. ओके, तो A कर रहा है कंप्लीट 12 डेज में और B कर रहा है 24 डेज में. तो अगर टाइम हमें पता है, तो क्लियरली टाइम इनटू एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू वर्क. तो इफ वर्क इज सेम, तो टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 12:24 या फिर 1:2 आ रहा है. तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1. एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी डबल दैट ऑफ बी, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं फॉर ऑल द डेज. सो इफेक्टिवली ए और बी टोटल मिलकर एक दिन में 3 यूनिट्स काम करेंगे. एंड आउट ऑफ दोज 3 यूनिट्स, contribution of A is equal to 2 units, or payment will always be proportional to their efficiency. So payment is proportional to work done by a person. और अगर साथ में मिलकर काम किया, so that is also equivalent to efficiency. Efficiency of A is equal to 2 out of total work 3. So 2 by 3 will be the payment received by A, which is equal to 2 by 3 into 180, and hence equal to 120 rupees. Option B. Okay. Next question. Work done by P in 1 day is double the work done by Q in 1 day. And work done by Q in 1 day is thrice the work done by R in 1 day. So P is working double with double the efficiency with respect to Q, and Q is working with thrice the efficiency with respect to R. So यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका आ रहा है, R, मिनिमम किसका आ रहा है, मिनिमम R का आ रहा है. सो R का एफिशिएंसी लेटर से 1 अज्यूम कर लेता हूँ. तो अगर एफिशिएंसी ऑफ R इज इक्वल टू 1, तो Q का है थ्राइस, तो 3 यूनिट्स हो जाएगा पर डे. एंड फॉर P दैट विल बी डबल ऑफ Q, यानी कि 6 यूनिट्स पर डे हो जाएगा. If P, Q and R are together completing the work in 30 days, so efficiency of P is 6, Q is 3, R is 1, total हो जाएगा when all of them are working together, total will be 10 units per day. और 30 days में work complete कर रहा है, तो work will be equal to 10 units per day multiplied by 30 days, so 10 to 30, 300 units. And then question asking, in how many days P can complete the work alone? Efficiency of P 6 है, तो 300 by 6, work divided by efficiency, that will be equal to time, which is equal to 50 days. ठीक है, 50 days, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A contractor undertakes to do a piece of work in 40 days. He engages 100 men at the beginning and 100 more after 35 days so that he completes the work in a stipulated time. If he had not engaged the additional men, how many days behind the schedule would it be completed? Okay, so work ऐसे केसेस में हम क्या मानेंगे, नंबर ऑफ मैन, और हर एक मैन की एफिशिएंसी 1 मान लेंगे. तो नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय डेज, दैट विल बी आवर वर्क, बिकॉज वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. और यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज proportional to number of men. So work will be equal to number of men multiplied by time, which is equal to days. Otherwise hours भी additional होते थे, multiplied by hours भी कर देते. Okay, so work in this case क्या हो जाएगा, पहले for first 35 days there are 100 men, 100 multiplied by 35, तो 3500 man days work हुआ है for first 35 days. Next 35 days में there are 100 additional men, तो total men are now 200. Sorry, next 5 days में, next 5 days total 40 days थे, 40 में से 35 days तो काम ऑलरेडी हो गया था, तो रिमेनिंग 5 डेज में देर आर टोटल 200 मैन. तो टोटल वर्क हो गया 3500 प्लस 1000, तो 4500 मैन डेज का वर्क है. और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इन हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल इट विल बी कंप्लीटेड अगर एडिशनल मैन को एंगेज नहीं किया होता. सो इफ देर वर 100 मैन ओनली, तो कितना टाइम लगता, डी वुड हैव बीन इक्वल टू 4500 टोटल वर्क डिवाइड बाई 100, तो 45 डेज इन टोटल लगते हैं. बट सिंस 40 डेज में वर्क कंप्लीट करना था, तो एडिशनल डेज वुड हैव बीन 5 एक्स्ट्रा डेज आर देयर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ओके, या फिर ऐसे ही देख सकते थे कि 100 में फर्स्ट 35 डेज क्या हो रहा है. हालांकि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट 35 डेज में देर आर 100 मैन इन्वॉल्व, नेक्स्ट 5 डेज में क्या है, देर आर 200 मैन इन्वॉल्व.
और सेकंड सिनारियो में भी हम फर्स्ट 35 डेज में तो यही सेम काम ले रहे हैं, तो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज नेक्स्ट 5 डेज। तो नेक्स्ट 5 डेज में 200 मैंने वर्क को कंप्लीट किया है, सो अगर 100 मैन वर्क करते तो उनको 10 डेज लगते, यानी कि 5 डेज एक्स्ट्रा लगते। इज दैट इट? सो तो अगर 100 मैन ही वर्क करते, 200 बजाय 100 मैन होते, तो अगर नंबर ऑफ मैन हाफ हो जाएगा तो नंबर ऑफ टाइम डबल हो जाएगा, सो हमारे डेज हो जाते हैं 10, यानी कि 5 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 5 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 5 ही आंसर हो जाता है स्ट्रेट अवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 men can complete a work in 48 days, 64 men started and did the same work for X days. After X days, 32 men increased, so the remaining work is completed in 16 and 2 by 3 days. So what is the value of X? Okay, so work done हमारा क्या है? Work done is equal to man multiplied by time, यानी कि 40 multiplied by 48, this is our total work. But in actual scenario, 64 men started the work and worked for X days. So that is 64x work done plus आफ्टर एक्स डेज 32 मैन इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ मैन कितने हो गए? 64 प्लस 32, दैट इज 96। 64 ऑलरेडी थे प्लस 32, यानी कि 96 मैन आर देयर नाउ, एंड दे वर्क फॉर 16 and 2 by 3 days, which is equal to 16 into 3 into 16 into 3 plus 2, 50 by 3 days। ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 16 से काटा पीटी कर लेते हैं। 16 से गया 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स। ओके, सो नंबर आ गया हमारा 120 इज इक्वल टू 4x प्लस 100, so 4x is equal to 20 and x is equal to 5. X comes out to be equal to 5. Option A is the answer. Okay. Next question. Fruits were purchased for rupees 350, rupees 350. 9 boys ate 3 by 5 of them in 2 hours. 6 boys feel their stomach as full, so do not eat further. In how many hours the remaining fruits will get finished by the remaining boys? यहाँ पे हुआ क्या है देखो, क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है बट ये भी टाइम एंड वर्क से ही सॉल्व करना है। फ्रूट्स वर परचेज फॉर रुपीज 350, यहाँ पे रुपीज 350 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। 9 boys ate 3 by 5 of them in 2 hours, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं उनमें से 3 by 5 have been consumed by 9 boys in 2 hours, तो 3 by 5 have been consumed by 9 boys in 2 hours. After that 6 boys feel satiated, तो 6 boys का स्टमक फुल हो गया, यानी कि अब वो तो नहीं खाएंगे कुछ भी एडिशन, तो नाउ रिमेनिंग 3 boys will be eating रिमेनिंग फ्रूट्स। और फ्रूट्स बचे कितने टोटल थे? 1 यूनिट, तो 3 by 5 have been consumed, तो 2 by 5 फ्रूट्स आर रिमेनिंग। अब कितने आवर्स में कंप्लीट होंगे, कितने आवर्स में फिनिश होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सच केसेस हम क्या करते हैं कि m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1, दिस इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2। The ratio of number of men involved multiplied by time divided by the work done by them, that is equivalent। तो रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है m dh by w, दिस इज कांस्टेंट। सेम प्रोपोर्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली मानते हैं फ्रूट खाना है, यहाँ पे एक वर्क है, तो अगर ये वर्क है 3 by 5 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय 9 बॉयज इन 2 hours, तो वर्क डन इन फर्स्ट केसेस 9 बॉयज m1 इंटू d1, डेज आर 2 आर्स, बेसिकली आर्स हो गए क्योंकि डेज तो यहाँ पे है ही नहीं, आर्स हो गए, टाइम हमारा आर्स में हो गया, 9 to 2 डिवाइडेड बाई वर्क डन इज 3 by 5 एंड दैट शुड बी इक्वल टू सेकंड केस में क्या है, दे आर 3 बॉयज, आर्स मान लेते हैं h, डिवाइड बाई वर्क डन बचा है 2 by 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 6 इंटू 2, तो 3h विल बी इक्वल टू 12, सो h विल बी इक्वल टू 4, तो आंसर विल बी ऑप्शन। ओके, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो वैसे भी इजी था, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती, वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होते, तब तो प्रॉपर्ली ऐसे सॉल्व करना चाहिए था। दवाई जैसे भी सोच सकते थे कि 9 बॉयज इनिशियली हैं, फाइनली 3 बॉयज हैं, तो बॉयज हमारे 1/3 हो रहे हैं, तो अगर बॉयज 1/3 हो रहे हैं तो वर्क भी 1/3 हो जाएगा अगर टाइम सेम रखते हैं तो अगर 9 बॉयज कंप्लीट कर रहे हैं 3 by 5 वर्क इन 2 hours, सो वी कैन से दैट 3 बॉयज विल बी कंप्लीटिंग 1 by 5 वर्क इन 2 hours, और बचा है हमारा 2 by 5 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर वर्क 2 by 5 बचा है तो टाइम भी हमारा मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4 hours हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A is 40% less efficient than B, who can do the same work in 20% less time than C. If A and B together can complete 80% work in 12 days, then how many days 60% work can be completed by B and C together? A का एफिशिएंसी हमें गिवन है 40% लेसर है इन कंपेरिजन टू B। 40% यानी कि 2 by 5,
और 2/5 कम है, यानी कि अगर बी का एफिशिएंसी 5 है तो इन दैट केस एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ए का एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 इफ एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 5। सो एफिशिएंसी ऑफ बी 5 एज्यूम कर लेते हैं, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। 2 लेसर है तो 3 होगा एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड कि बी कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी, 20% यानी कि 1/5 लेस टाइम देन सी। तो अगर सी को 5 डेज लग रहे हैं, बी को लगेंगे 4 डेज। अब यहाँ पे डेज का कंपैरिजन गिवन है, एफिशिएंसी का नहीं है, तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर बी और सी की बात करें, so if C is taking 5 days, B will be taking 4 days to complete a work। एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, नहीं 5:4 होगा। तो अगर B की एफिशिएंसी 5 है, C की 4 हो जाएगी, और B की हमने ऑलरेडी 5 एज्यूम की हुई है, तो C की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अदरवाइज एलसीएम लेते दो एफिशिएंसी का, जो B की एफिशिएंसी आती है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A का एफिशिएंसी 3 आ गया, B का 5 आ गया, C का 4 आ गया। देन क्वेश्चन सेइंग A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट 80% वर्क इन 12 डेज। तो A एंड B टुगेदर एफिशिएंसी आ रहा है 8, और 12 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे 8 इंटू 12। A and B in 12 days. They'll be completing 8 into 12 units work. And this is 80% work. 80% यानी कि this is 4/5 work. यानी कि this is equal to 4/5 times W. तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, ठीक है। W यहाँ से आ जाएगा, W will be equal to 5/4 into 8 into 12, ठीक है। सब एक ही स्टेप में लिखना है, एक साथ ही लिखना है, बट समझते समय अभी थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है। 5/4 into 8/12। अब क्या करना है, हमें करना है 60% वर्क बी एंड सी टुगेदर कितने टाइम में करेंगे, 60% यानी कि 3/5, तो मल्टीप्लाई दिस बाई 3/5 एज वेल। 3/5 into 5/4 into 8 into 12, this becomes our work that has to be required to be done by B and C। और B और C का एफिशिएंसी क्यूमुलेटिव क्या है, टुगेदर 5 + 4 9 यूनिट्स, डिवाइड बाई 9 कर दो, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से यहाँ बचा 2, और फिर यहाँ पे 8 हो गया। तो 8 डेज में वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई बी एंड सी टुगेदर। अच्छा, ऐसे केसेस में एक बात और याद रखना कि कभी भी देखो, यहाँ पे तो वैल्यूज आसान थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वैल्यूज अगर मुश्किल हो तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है वैल्यूज को, एंड में जाके कई सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी कि पहले मल्टीप्लाई किया फिर बाद में डिवाइड किया, इससे बेटर है एक साथ सारी चीज़ों को हम कैंसिल आउट करेंगे एंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 men and 6 women finish a job in 8 days, while 3 men and 7 women finish it in 10 days. In how many days will 10 women finish the same work? तो यहाँ पे वर्क हमें गिवन है, दो सिनेरियोज गिवन है। एक सिनेरियो में 4 men and 6 women are doing it in 8 days. In the second scenario 3 men and 7 women are doing it in 10 days. तो वर्क becomes equal to 4 men plus men की एफिशिएंसी m मान लेते हैं और women के w, तो 4m plus 6w multiplied by 8, this will be total work done in the first scenario। क्योंकि वर्क डन तो सेम ही है, तो सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, 3m plus 7w into 10, मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज को, तो 4m into 8 32m, और यहाँ पे आ रहा है कितना 30m यानी कि 2m, दिस विल बी इक्वल टू 48, और यहाँ पे आ रहा है 70, तो 2m इज इक्वल 22w। ओके, 2m इज इक्वल 22w, तो यहाँ से हमारा m अपॉन w आ गया 22/2, विच इज इक्वल टू 11/1। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन इज इक्वल टू 11 यूनिट्स, और एफिशिएंसी ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। तो यहाँ से हम टोटल वर्क अपना निकाल सकते हैं, किसी भी एक केस में वैल्यू पुट कर दो कि मैन का एफिशिएंसी आ गया 11 यूनिट्स और वुमन का आ गया 1 यूनिट, तो वर्क विल बी इक्वल टू 4 into 11 प्लस 6 into 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस इज आवर टोटल वर्क। और ये कंप्लीट करना है 10 वुमेन को, और वुमेन की एफिशिएंसी तो 1 ही आई है, तो डिवाइड बाई 10 into 1, तो 44 + 6 50 into 8/10, तो 0 से 0 गया, बच गया 40 डेज। In 40 days 10 women can complete this work. Option D will be the answer. Okay, क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two statements given and we have to find out which of these are true and which of these are false. First statement को पहले सॉल्व करते हैं। Statement is saying 4 boys and 8 girls complete 1/3 of the work in 5 days. After that 3 boys and 3 girls complete increased. Okay, increased. 3 boys and 3 girls increased and they completed another 1/3 of work in 3 days. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम सिनेरियो अप्लाई कर सकते हैं, M1 D1 H1 by W1। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमारे पास 4 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, दे आर कंप्लीटिंग 1/3 वर्क इन 5 डेज। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स नहीं है, दोनों इन्वॉल्व हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारा 4 बॉयज़ का 4B, अगर एक बॉय का हम B मान लें, और 8 गर्ल्स का 8G, एंड दे आर वर्किंग फॉर टोटल 5 डेज, दिस विल बी आवर टोटल वर्क। और डिवाइड कर दो बाय वर्क विच इज़ 1/3,
तो दिस शुड बी इक्वल टू सेकंड सिनेरियो देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इंक्रीज्ड, यानी कि अब बॉयज कितने हो जाएंगे 4 + 3 7, तो 7b प्लस गर्ल्स विल बी 11, 11g एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/3, तो 1/3 तो कैंसिल आउट हो गया। इक्वेट कर लो, तो 4 × 5 20 बॉयज और यहाँ पे आ रहा है 21, यानी कि 21 - 20 b, और 8 × 4 5 40 गर्ल्स और यहाँ 33, तो b इज इक्वल टू 7g, यानी कि b बाई g इज इक्वल टू 7/1। द एफिशिएंसी ऑफ अ बॉय is equal to 7 units and efficiency of a girl that is equal to 1 unit. Remaining work is to be completed in 2 days, so number of girls that should be increased is 32. तो बचा हुआ वर्क है कितना है, 1/3 वर्क किया पहले इन फर्स्ट 5 डेज, नेक्स्ट 3 डेज में 1/3 वर्क फिर से किया, तो रिमेनिंग वर्क भी कितना होगा 1/3 होगा, 1/3 हुआ फर्स्ट 5 डेज में, फिर 1/3 हुआ नेक्स्ट 3 डेज में, तो बचा भी कितना होगा, बचा हुआ है 1 - 1/3 + 1/3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। तो 1/3 वर्क को निकाल के इक्वेट कर सकते हो, पूरा वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पूरा वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ वर्क क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शुड बी इंक्रीज, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शुड बी, एक सेकंड, 4 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी हमारा सिनेरियो है यानी कि ऑलरेडी 7 बॉयज और 11 गर्ल्स थे, अब कितनी गर्ल्स इंक्रीज करेंगे सो दैट हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए 2 डेज में, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इजंट इट सो, ये तो पर्पस है, ठीक है। सो मान लेते हैं 7 बॉयज प्लस x गर्ल्स से कंप्लीट होगा 2 डेज में, तो 2 डेज का वर्क ऑफ 7 बॉयज प्लस 11 प्लस x गर्ल्स, दिस शुड बी इक्वल टू 3 डेज का वर्क ऑफ 7 बॉयज प्लस 11 गर्ल्स, या फिर 5 डेज का वर्क ऑफ 4 बॉयज प्लस 8 गर्ल्स, किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी, b इज इक्वल टू 7 और g इज इक्वल टू 1, तो 2 × 49 प्लस 11 प्लस x, दिस विल बी इक्वल टू 3 × 7 × 7 49 प्लस 11, तो यहाँ वैल्यू आ गया हमारा 120 प्लस 2x और दिस इज इक्वल टू 180, तो x कम्स आउट टू इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, 30 हो जाएगा। अदरवाइज यही सेम चीज़ ऐसे भी सोचा जा सकता था कि हम एफिशिएंसी निकाल लेते 3 डेज वाले केस में, 3 डेज वाले सिनारियो में हमारे पास 7 बॉयज़ हैं और 11 गर्ल्स हैं, तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है 7 × 7 प्लस 11 × 1, तो दैट टोटल एफिशिएंसी 60 एफिशिएंसी आ रहा है, तो एफिशिएंसी जब 60 है तो टाइम टेकन इज 3 डेज टू कंप्लीट 1/3 वर्क, वर्क कितना हो रहा है 180, 1/3 वर्क कितना है एक्चुअली 180 है, तो सेकंड केस में वर्क तो हमें 180 ही करना है, तो एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए अगर 2 डेज में कंप्लीट करना है 90 होनी चाहिए, 60 ऑलरेडी है लेकिन 30 एफिशिएंसी हमें ऐड करनी पड़ेगी, और एक वुमन की एफिशिएंसी, एक गर्ल की एफिशिएंसी 1 यूनिट है लेकिन 30 गर्ल्स ऐड करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, नहीं डेफिनेटली ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता, तो बी या डी में से कुछ एक आंसर है, सेकंड स्टेटमेंट को भी चेक तो करना ही पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमारा रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए टू सी टू डू अ वर्क इज 1:2, तो अगर टाइम का रेशियो 1:2 है यानी क्लियरली एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा ऑपोजिट आ जाएगा, तो फॉर ए एंड सी, ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा हमारा 2:1, ए का एफिशिएंसी 2 और सी का 1 आ गया। Additionally, B is 166 and 2/3% more efficient than C. 166 and 2/3%. So that is equal to 500/3 और 5/3. 500/3% में हुआ, 5/3 मोर एफिशिएंट है, 5/3 एफिशिएंट नहीं है, मोर भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, तो 5/3 मोर एफिशिएंट है, यानी कि अगर एफिशिएंसी ऑफ C इज इक्वल टू 3 यूनिट्स तो फिर B का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 8 यूनिट्स आ जाएगा, 3 से 5 ज़्यादा होगा, तो पहले C की एफिशिएंसी को 3 मान लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, और अगर मल्टीप्लाई इसको 3 से किया इसको भी करेंगे, अगर C की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी विल बी 5 मोर, यानी कि दैट विल इक्वल टू 8, that will equal to 8. Time taken by A to complete 6% of work is 6 days. Time taken by A to complete 6% of work is 6 days. Then time taken by B and C together complete the whole work will be 54 and 6 by 11 days. Check out करना पड़ेगा. A complete कर रहा है 6% work in 6 days. Okay, तो कितना वर्क होगा 6%, 6 डेज में कितना करेगा, एक 1 डे में कर रहा है 6 यूनिट्स, तो 6 डेज में करेगा 6 × 6 एंड दिस इज 6%, दिस इज इक्वल टू 6%, या ऐसे समझ लो कि अगर 6% कर रहा है 6 डेज में तो 100% करेगा 100 डेज में, तो कंप्लीट वर्क निकल आएगा यहाँ से, डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है, अगर 6% कर रहा है 6 डेज में 100% करेगा 100 डेज में, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 100 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 6, दिस इज टोटल वर्क,
और कंप्लीट करना है बी और सी को, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना है 8 + 3 11, डिवाइड बाई 11 कर दो, 600/11, 11 5 जार 55, बच गया फिर हमारा 50, 11 4 जार 24, 54 and 6/11 days में the work will be completed, which is also mentioned in the statement. So this is correct. फर्स्ट इनकरेक्ट था, सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा. फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन डी. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two pipes P and Q can fill a tank in 20 hours and 25 hours respectively, while a third pipe R can empty the tank in 30 hours. If all the pipes are open together for 10 hours and then pipe R is closed, then what time the tank can be filled? So P and Q can fill the tank in 20 and 25 hours respectively. They are filling the tank, while the third pipe R, that is emptying the tank. नेगेटिव वर्क कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है टैंक को, और टाइम टेकिंग इज 30 आवर्स. एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी. ठीक है, 20 25 और 30 कैल्शियम लेके वर्क एज्यूम कर लो. कितना आ जाएगा वर्क हमारा? 30 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 20 30 का होता है 60, 60 × 5 300, 300 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा. अगर 300 वर्क है तो एफिशिएंसी ऑफ पी कितना होगा? 300/20 15, एफिशिएंसी ऑफ क्यू होगा 300/25 12, एफिशिएंसी ऑफ आर विल बी 10. बट नेगेटिव साइन के साथ ये ध्यान रखना, बिकॉज नेगेटिव वर्क कर रहा है यार, एम्प्टी कर रहा है. तो ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 10 आवर्स. टोटल वर्क हमारा 300, यानी कि अगर 300 लीटर्स लेटर से फिलअप करना है, और उसमें से क्या किया हमने, फर्स्ट 10 आवर्स ऑल पाइप्स आर ओपन. तो पाइप ए कितना फिलअप करेगा? 15 लीटर्स करेगा. पाइप क्यू कितना करेगा? 12 लीटर्स करेगा. पाइप आर कितना करेगा? -10 लीटर्स खाली करेगा. तो सबके सब साथ में मिलकर 15 + 12 -10 यानी 70 लीटर्स पर आवर. अगर 300 लीटर्स फिलअप करना है, 70 लीटर्स पर आवर फिलअप करेंगे. तो 10 आवर्स में कितना फिलअप कर पाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, 170 लीटर्स. सो रिमेनिंग वर्क बचेगा हमारा 130. टोटल करना था 300, 170 हो गया, तो 130 लीटर्स इज रिमेनिंग. बट अब इतना फिलअप करने के लिए हमें क्या चाहिए? आर को क्लोज कर दिया, 15, अब बचा है पी और आर. पी और क्यू फिलअप करेंगे, तो 130/27. दिस विल बी द टाइम टेकन बाई देम आफ्टर 10 आवर्स. टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम हो जाएगा 10 + 130/27. एलसीएम ले लिया 27 को, तो आ जाएगा 270 + 130 यानी कि 400/27 आवर्स विल बी आवर आंसर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 427. ओके, क्लियर. ठीक है, तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी बातें हमने सारी सारी समझ में, फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, थोड़ा सा भी डाउट रहता है, तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. कोई सेशन पसंद है इसको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर से करना. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल एंड मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYKT. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.